here. We'll want to start in a minute. बच्चे लोग, just we can begin. Somebody will want to respond with a yes or no. I hope my voice is loud and clear. Yes, sir. Here we go. Question one. Now in question one, they tell you that the standard reduction potential of cupric to copper. So naturally this Cu plus 2 to copper is 0.34 volt. You have to find the E, find the corresponding potential at pH is equal to 0. I'm so sorry, at pH is equal to 14. At pH is equal to 14, what's also given is the Kp of copper hydroxide. The Kp of copper hydroxide is 10 to the power minus 19. You have 4 options. I'm not writing the options. So, I think the question is clearly visible. I had given you the problem sheet. So let's solve it. Let's solve it. बच्चे लोग, what I'm going to do is I'm going to give you the solution right away. The solution certainly would look like Cu plus 2 OH minus whole square 10 to the power minus 19 is given. Now pH is equal to 14 would certainly mean POH is equal to 0, which is a direct way of saying that OH minus is 1 molar. So if I feed OH minus 1 molar, this is an indirect way of telling me that the concentration of cupric is 10 to the power minus 19 molar. I think you're understanding me. This is an indirect way of telling me that cupric concentration is 10 to the power minus 19 molar. I want to apply E is equal to E naught. So I want to apply, Nernst's equation where I'll remember that this is the reactant of the chain. So product by reactant, I write 10 to the power minus 19 in the denominator. And I think this is going to give me the right answer. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. इससे माइनस 0.22 वोल्ट आता है. इससे माइनस 0.22 वोल्ट आता है. इससे माइनस 0.22 वोल्ट आता है. जो प्रॉब्लम शीट का ऑप्शन बी है आई बिलीव. तो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मेरे को ना इवेंचुअली ये समझना है, मेरे को सिर्फ ये समझना है कि कोई प्रॉब्लम कैसा भी हो, हाउ डू आई एंड अप अप्लाइंग नर्स इक्वेशन देयर. Hello. So the nurse equation, yes please go ahead. Hello. Yes please. Hello. Somebody has a doubt? Yes, I can hear you loud and clear. Who's there? क्लास चालू हो गया. क्या समझा होता है? होंगे कब बदल जाते हैं कि नहीं पाएंगे? हेलो. I hope you all can hear me loud and clear. See. So basically, it's all about realizing how am I going to use this equation. If it's the, reduction potential is the standard potential. So it's all about realizing that I have to use E is equal to E naught minus 0.059 by N, which is 2 in this case, log of product by reactant, which is 1 upon Cu plus 2. तो यहाँ पर Cu plus 2 ढूंढने का एक नॉवल तरीका है, एक इनोवेटिव तरीका है, KSB के टर्म्स में देना. I think it's within reach. We can move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. So we move to question 2. Now question 2 is about a concentration cell. Now you have Ag and Ag plus coming from Agi in presence of Ki, which is 0.05 molar, is how the anodic compartment looks like. The cathodic compartment is about Ag plus and Ag
where this Ag comes from silver nitrate, and the silver nitrate is 0.05 molar. I mean, this is the only silver compound which I know is completely soluble, because all nitrates are soluble. The question is, find KSP of AgI. Find KSP of AgI. अगर इस सेल का E 0.3 वोल्ट है, you have to find KSP of AgI. And I'm going to solve it right away. Again, it's a concentration cell. We all know for a concentration cell, E cell will be written as E naught cell, which is 0 minus 0.059 by 1 in this case. And when I write log Ag plus and Ag plus, I've told you I always look upon this as product by reactant. I always look upon this as product by reactant, and when I look upon this as product by reactant, this is the product and this is the reactant of the chain. And this is where it's so always simple for me to remember that this is anodic and this is cathodic concentration. Now the value given is 0.59, which is minus 0.059 log of, now I have to find Ag plus, which comes from AgI, because Ag plus in the cathodic compartment 0.05 is given. And around this time I want to take a pause, and I would want people to understand that this is a little different but not difficult, in the sense all they want is one way of getting Ag plus from the KSP, or from the Ag plus getting KSP. इसकी पहले प्रॉब्लम में KSP से Ag plus कंसेंट्रेशन निकाले थे, यहाँ पर कंसेंट्रेशन से हम लोग KSP निकालेंगे. So please tell me what is the Ag plus which you get here of the anodic compartment, which is So from AgI. 5 into 10 power minus 12. 5 into 10 power minus. You get it as 5 into 10 to the power minus 12. Are you all there with me? Yes, sir. And I minus will come from Ki. This is very, very basic. Ki is completely soluble. So all of Ki will give you I minus, which is 0.05. So I can easily take it 0.05, and naturally KSP will be like the product of Ag plus and I minus. So it's again nice little problem. 5 into 10 to the power minus 12 and 5 into 10 to the power minus 2. So give me 25 into 10 to the power minus 14, which is 2.5 into 10 to the power minus 13 as an option, which is option A. I hope I'm going all right. So are you all there with me? A Agra for question 2 is understood? Yes, sir. We'll talk about question 3 then. You can quickly take a snapshot, and you had doubt, you can ask me, or I'm going to record and upload it for everybody's perusal. I'm going to move at a faster pace. Question 3, let's move on. Question 3. अब क्वेश्चन 3 में ना मेरे को एग्जैक्टली सेम सिचुएशन दिया हुआ है, बट ये जो Ag प्लस है वो पूरा का पूरा Ag2CrO4 से ही आ रहा है, इसको सैचुरेटेड बोला है. तो यहाँ पर हम लोग Ag प्लस का कंसेंट्रेशन से इसके केस पे निकाल सकते हैं. एंड राइट हैंड साइड में एनोडिक हाफ में यू हैव, कैथोडिक हाफ में यू हैव दिस हैज 0.01 मोलर. So 0.1 था ना? 0.1 molar, 0.1 molar. It's 0.1 molar actually. तो 0.1 मोलर है. तो है तो वही प्रॉब्लम ना, यहाँ पर भी तुमको EMF दे दिया है एक पर्टिकुलर सेटअप का, जहाँ पर Ag plus is coming from a saturated Ag2CrO4. If the EMF of the cell is given as 0.177, did I solve it in the class? ये क्लास में सॉल्व हुआ था क्या? हाँ सर, हाँ, ये क्लास में सॉल्व हो गया था. हाँ, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग. 0.177 को लिखेंगे E naught, which is 0 minus 0.059 by 1 log of, now this is Ag plus upon Ag plus, yet again this is Ag plus upon Ag plus, but I remember that this Ag plus is the product, which is the one which is coming from Ag2CrO4, and this is Ag plus which is 0.1 molar, which is the कैथोडिक. ये कैथोडिक है और ये एनोडिक है. मेरे को लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को.
और ये 0.1 लिखने से 0.177 इज इक्वल टू -0.059 log ऑफ Ag plus which is giving by AgCrO4 upon 0.1. प्लीज टेल मी ये Ag plus कितना रहा बच्चे लोग? 10 to the power -4 10 to the power -4. -4 -4. अब हम लोग इसको KSP को 4s cube के हिसाब से 4s निकाल cube, सकते हैं, where it will be like 4 into 10 to the power -4 by 2 का whole cube, realizing that Ag2CrO4 is going to break like Ag2CrO4 giving you 2Ag plus and CrO4 2 minus. तो यहाँ पर अगर इसका solubility S होगा तो ये 2S होगा. ऐसे भी कर सकते हैं, 2S लेकर के भी कर सकते हैं कि solubility जो होगा वो उसका हाफ होगा 4s cube का जो फॉर्मूला होता है for ternary salt, और I end up telling you that I can find it very clearly as Ag plus का square upon CrO4 2 minus, which is in this case 10 to the power -4 का whole square, and this will be 10 to the power -4 by 2 because chromate यहाँ पर half ही आएगा. In both the cases, you do it this way or you do it this way, you'll get the same answer, which is 1.25 into 10 to the power -13. ये आ रहा है क्या? देखो B आ रहा है क्या? सबका B आ रहा है क्या ये? सबका B आ रहा है क्या ये? देखो मैं गलती भी कर सकता हूँ. If I do a mistake somewhere, you can correct me. तो सी आ रहा है। हाँ सर सी आर तो क्लास में अपने किए थे तो 500 C power भी आया -18 था। Obviously, I'll go by you. So I'm getting to know कि C है, and you'll want to excuse me for obviously the calculation error which I do. God knows, I can obviously manage this calculation, but excuse me. C Calcutta. Question 4 देखते हैं बच्चे लोग. 4. Question 4 देखते हैं. Take a snapshot. Question 4 में AgCl आता है KCl का प्रेजेंस में, और AgBr आता है KBr का प्रेजेंस में. तो 4 भी ना एक वैसे ही प्रॉब्लम है. 4 भी वैसे ही प्रॉब्लम है. 4 में भी देखो है ये कंसेंट्रेशन सेलिंग, जहां पर ये Ag प्लस comes from AgBr in presence of KBr, and ये KCl है क्या? यहाँ पे KCl है, सॉरी ये KCl है, और यहाँ पर Ag प्लस comes from AgCl होगा, और यहाँ पर Ag प्लस comes from AgBr in presence of KBr, और NABr क्या दिया? KBr दिया. पूरा सेल कभी देता है कभी नहीं देता. वी डोंट वांट टू बी वेरी फिनिकी अबाउट इट. ये 0.2 मोलर दिया है और वो 0.001 10 to the power -3 मोलर है. आई थिंक इट्स फेयरली विजिबल. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. They talk about the EMF generated अगर KSP का वैल्यू दोनों का दिया है. So you have to find the EMF. You have to find the EMF where the KSP values are given. Find EMF if KSP AgCl is equal to 2.8 into 10 to the power -10, and KSP AgBr is equal to 2 into 10 to the power -13. They also give you the value of log 7 as 0.845. Please go ahead. How do you go about solving it? यार पहले Ag का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे KSP से दोनों. मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली ई सेल निकालने के लिए गो टू द सेम फॉर्मूला 0 minus 0.059 by 1 log of, and this is Ag plus upon Ag plus, and around this time you all understand this is Ag plus which is coming from AgCl, and this is Ag plus which is coming from AgBr. Yet again I want you to see this as the product and this as the reactant of the change. यहाँ पर प्लस नहीं होगा नेचुरली. चलो हाँ ना बोलो. हाँ सर. अब यहाँ पे KSP का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब तुमको Ag प्लस पता है. KCl and KBr are completely soluble, so they have like Ag plus
which is going to be in the compartment of AgCl or anodic compartment in presence of Cl minus, which is 0.2 molar. Yeah, but you want to see the same Br minus, which is coming from KBr, which is 10 to the power minus 3. I think I'm being understood. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर ठीक है. You have a question, you have a doubt, you can obviously ask me, but otherwise I'll want to move on. I'll want to write this as minus 0.059 log of Ag plus from, AgCl will be like 2.8 14 into 10 to the power minus 10 upon 0. 0.2, and this will be like 2 into 10 to the power minus 13 upon 10 to the power minus 3. अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है. यहाँ पर 7 आया naturally सर अंदर 10 to the power minus 10 10 to the power minus 10 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 10 to the power minus 10 10 to the power minus 10 कैंसिल हो जाएगा. ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. 10 to the power minus 10 आएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. ये 0.2 0.8 minus 0.059. ये 0.059 minus 0.059 log of 2.8 by 0.4 आता है. 7 तो log 7 क्या है? क्या आंसर क्या है? बी बॉम्बे। बी बॉम्बे। So, you multiply this with 0.845, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, ये नेगेटिव आ रहा है क्या बच्चे लोग? हाँ सर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसमें पार्ट ये भी है कि असाइन पोलैरिटी टू इट्स इलेक्ट्रॉन. अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका ये भी मतलब है that the cell is wrongly concentrated. The cell is wrong. The cell convention is the reverse. Ideally, this is going to be the real convention where Ag becoming Ag plus and Ag plus becoming Ag, and this is the one which is acting as the anode, and this is the one which is acting as the cathode, and this is acting as the anode. तो ये plus 0.059 होगा. मतलब ये रिवर्स है. ये सेल कन्वेंशन जो दिया है वो भी गलत दिया है इस कंसेंट्रेशन के लिए. आइडियली इसका उल्टा होना चाहिए फॉर दिस टू बी पॉजिटिव. क्या बी बॉम्बे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 5 के पहले आई डू समथिंग व्हिच इज वेरी रूटीन कॉमन, again very popular with examiners, where most of you might know that in a given problem, if they tell you about ferrous to iron to ferrous as x volt and ferrous to ferric as y volt, then ferrous to iron to ferric taking x plus y volt is wrong. You can't move like this. This is wrong. ये लिखो जो भी ये गलत होता है. ठीक है. You can't add EMF like this. You can't add EMF like this. What is additive is the delta G value. I think I'm being understood. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर। हाँ मैं ये एक्स वाई की जगह ना इसको E1 E2 लेता हूँ. अगर मैं इसको E1 लेता हूँ और अगर मैं इसको E2 लेता हूँ, तो this E3 is not equal to E1 plus E2. Rather, what I can take is delta G3 equal to delta G1 naught plus delta G2 naught. And then if I understand that it's like delta G is additive and not EMF, I'll write minus N3F E3 naught equal to minus N1F E1 naught plus of minus N2F E2 naught, where N1, N2, N3 are the number of electrons involved in the corresponding cages. And I'll write E3 naught is equal to N1 E1 naught plus N2 E2 naught upon N3. यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दिया हूँ, पर इसका और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सरप्राइजिंगली काफी सारा नीट में पूछा है. So at some point of time I'm going to discuss more questions of this type. Some are really good, some are dicey. Looks very simple, but could be fairly dicey. अच्छा ये 5 नहीं, ये क्वेश्चन 7 का बात में कर दिया. ये 7 में लगेगा. पर अभी ये एक बार लिख लो इसको. ठीक है. 5 और 6 तो खाली केसी का वैल्यू है.
ये सबको समझ में आ रहा है? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। मैं देख नहीं रहा था, काफी लोग वेटिंग लिस्ट में थे, सॉरी अबाउट इट। सादिया, गरिमा, and maybe Simran. I'm really sorry, I did not check, but you might have been waiting for some time. सादिया, सिमरन और एक और कौन है अभी ज्वाइन किया? Can you all hear me loud and clear? तो जो लोग अभी ज्वाइन किए हो ना, उसके लिए मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। नेचुरली एक्स वाई लिख करके कोई मतलब नहीं है। ये एक्स मान लो इवन नॉट है, वाई मान लो E2 नॉट है। तो अगर आयरन से फेरस हो रहा है, फेरस से फेरिक हो रहा है, ऐसा लगता है इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, बट कभी भी ईएमएफ एडिटिव नहीं होता है। E3 नॉट इज नॉट इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, जिसको मैं पहले एक्स प्लस वाई लिखा था, ऐसा नहीं होता। डेल्टा जी ऐड कर सकते हैं। डेल्टा जी और ई का क्या रिलेशनशिप है, सबको समझ में आता है। डेल्टा जी और ई का क्या रिलेशनशिप है? डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब इसका काम क्वेश्चन 7 में पड़ेगा। मेरे को लगा 5 हुआ तो मैं ये पहले ही करा दिया, बट आई थिंक यूर ऑल देयर विथ मी। बच्चे लोग हाँ ना बोलो, इसको एकदम बिल्कुल जान लो। इसको और क्वेश्चंस में करवाऊंगा, इसको और क्वेश्चंस में करवाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आर यू ऑल देयर विथ मी? आई वांट सम पीपल टू रिस्पोंड एंड मूव ऑन। Yes, sir. क्वेश्चन 7 Yes, ऐसा sir. था, क्वेश्चन 7 में बोलता है फेरिक से फेरस हो रहा है। क्वेश्चन 7 में बोलता है फेरिक से आयरन हो रहा है और इसका E1 नॉट है 0.45 वोल्ट। फिर बोलता है कि आयरन से फेरस हो रहा है, आयरन से फेरस हो रहा है और इसका E2 नॉट है -0.04 वोल्ट। एंड दे वांट यू टू फाइंड कि अगर फेरस से फेरिक होता है तो इसका E नॉट कितना होगा। और इसमें हमेशा पहला ऑप्शन E3 नॉट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमेशा पहला ऑप्शन 0.41 वोल्ट देता है, विच आई टेल यू द वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। इसका ऑप्शन बी 1.27 वोल्ट मेरे को लगता है राइट आंसर है। ये कैसे आएगा? वैसे ही आएगा, E3 नॉट इज इक्वल टू, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ, sir. पहला वाला में N1 3 है हाँ, 0.45, प्लस दूसरा वाला में N2 2 है -0.04 अपॉन N3 1 है फेरस टू फेरस, एंड दिस हाउ यू गेट ऑप्शन बी 1.27। मैं ना इसके लिए हाफ अ मिनट का टाइम देता हूँ, एंड देन 5 and 6 आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 5 और 6 के लिए you remember for question 5 and 6, for question 5 and 6, for question 5 and 6 you had a very basic result. Kc is equal to antilog and E naught by 0.059, which is basically 10 to the power and E naught upon 0.059। ये कल मैं हावड़ा बैच में भी करवा दिया था, ये सबको याद रखना पड़ेगा। People will want to respond, are you all there with me? यहाँ पर सबको यही करना है। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कैथोडिक एनोडिक रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, तुमको बस दोनों को लेकर के ई नॉट निकाल करके वैल्यू पुट करना है, और दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक वी कैन मूव ऑन। आर यू ऑल देयर विथ मी? क्वेश्चन 5 Yes, मैं sir. 5 और 6 जल्दी कर देता हूं। तो क्वेश्चन 5 में दे टॉक अबाउट फेरस एंड Ce+4 बिकमिंग फेरिक एंड Ce+3। अब ये सरप्राइजिंग नहीं है कि दोनों का मेरे को ना रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और मैक्सिमम केस में तुमको रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा, बिकॉज आई टेल यू रिडक्शन पोटेंशियल इज दी स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब इसको सीधा लेना है बिकॉज ये रिड्यूस हो रहा है, इसको उल्टा लेना है, इसको उल्टा लेना है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो नेचुरली आई गो विद 1.44 minus 0.26, which I reckon is 1.18 volt. If I do a mistake somewhere, you'll want to correct me. And then it's as simple as Kc is equal to antilog, which is 10 to the power n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1.18 upon 0.059। I mean, this is going to be such a simple scoring opportunity. I hope you're all there with me। 5 नंबर हो गया।
हाँ सर 6 नंबर के लिए एग्जैक्टली सेम और फॉर्मूला। 0.6 6 नंबर के लिए एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, 6 नंबर के लिए एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। अब उसका एक ही दिन चलाया था। तो यहाँ पर ये सब देख के खाली तुमको ये समझना है कि n का वैल्यू 2 है। देखो यहाँ देख के n का वैल्यू 2 समझ में आता है सबको? n का वैल्यू 2 सबको समझ में आता है यहाँ पे बच्चे लोग? हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल दिया जैसा दिया रहता है हमेशा, ई नॉट, फेरिक टू फेरस दिया हुआ है 0.77 और I3 माइनस टू आई माइनस दिया हुआ है 0.534. अब naturally, I want to take this forward and this backward. So I'll write E naught cell as 0.77 minus 0.534. Does it give me 0.226 volt? And I'll get KTS 10 to the power n is 2 into 0.226 upon 0.059. ये 10 to the power 8 आ रहा है मेरा, तो सही आ रहा है क्या? देखो तो हाँ सर 10 बार एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्लास में करवाया था फुल भगवान बैच में, हावड़ा वाला लोग ध्यान से सुनेगा। 8 नंबर एक पुराना जेई का प्रॉब्लम है, 8 नंबर एक पुराना जेई का प्रॉब्लम है, जहां पर दो स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बात करते हैं। ये सिल्वर गोल्ड का जो क्वेश्चन था ना पीवाईक्यूज में, वैसा ही है। आई थिंक यू आर हैप्पी विद 5 and 6। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में बोलता है एक सोल्यूशन है जिसमें 0.4 ग्राम Cu+2 है। 4.4 ग्राम Cu+2 एक्वस का मतलब है Cu+2 विल गो इन प्रेफरेंस टू H++ ऑक्सीजन जाएगा लेकिन एनोड पे। इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, स्टिल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टिल all copper is deposited and then it is further electrolyzed using, I think it's 1.2 ampere, yes, 1.2 ampere for 7 minutes. Find volume of gas is evolved, volume of gas is evolved, volume of gas is evolved at NT throughout the process. तो ये मैं फुल बगान बैच में करा दिया था। ये मेरे को लग रहा है सबको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मेरे को लग रहा है सबको दिख रहा है। आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। I think the question is visible to all of you. I think it's clearly readable. Please respond with a yes or no. यस सर तो बेसिकली 0.4 ग्राम कॉपर को जब इलेक्ट्रोलाइज किया, जब तक सारा कॉपर डिपॉजिट हुआ तो वहां पर एनोड पे ऑक्सीजन जा रहा है और कॉपर कैथोड पे जा रहा है। कॉपर विल गो इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो दो स्टेजेस है। पहले जब मेरा एनोड पे कॉपर जा रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन जा रहा है, स्टेज 1 में जब कैथोड पे कॉपर जा रहा है तो एनोड पे तो ऑक्सीजन जा ही रहा है ना। कितना ऑक्सीजन जाएगा? जितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, तो ऑक्सीजन विल गो लाइक 0.4 अपॉन 63.5/2। इतना इक्विवेलेंट कॉपर है तो इतना इक्विवेलेंट ऑक्सीजन ही होगा, और उसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वो 5.6 लीटर्स होगा। जब द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज गॉन इन स्टेज 1। स्टेज 2 पे when copper is over, this is like traditional इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा और एनोड पे ऑक्सीजन जाएगा। कितना जाएगा? 1.2 एम्पियर 7 मिनट्स तक करोगे तो इतना फैराडे, मतलब इतना इक्विवेलेंट, इतना 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेचुरली द सेम इक्विवेलेंट ऑफ oxygen. So if this is a volume V1, if this is a volume V2, if this is a volume V3, V1 plus V2 plus V3 will give you the final answer. See, more than the numerical value,
more than the numerical value, it's such an age-old problem. It's such an age-old problem. If I remember, this had come in a JEE exam before I started teaching. So before, 2000, ये लास्ट मिलेनियम का क्वेश्चन एक तरीके से, और एकदम बिल्कुल ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, पुराना पी बहादुर में मिलेगा, आरसी मुखर्जी में मिलेगा, एकदम सिंपल बेसिक फंडा है कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जब कॉपर जा रहा है उस समय हाइड्रोजन नहीं जाएगा, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पर ऑक्सीजन तो जाएगा ना, तो जितना इक्विवेलेंट कॉपर जा रहा है उतना ऑक्सीजन का वैल्यू इक्विवेलेंट से वॉल्यूम निकाल लो, and then if it's carried on for 1.7 minutes using 1.2 ampere, V1 plus V2 plus V3, I thought somebody will tell me the answer by now. What is the answer? I never calculated it. So what is the answer? Even if it's a lot of calculation, you can tell me using a calculator. Did anyone solve it? Did anyone solve it? You can solve now and tell me using a calculator. I would want to rather move on. Question 9. In question 9, they give you the limiting conductance of benzoate ion and H plus ion. So the limiting conductance of benzoate ion is given as 42. 42 per ohm centimeter square per equivalent. And for H plus, it's given as 288.42. I mean, I have told everyone, that for H plus OH minus is going to be fairly high value. अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये नेचुरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे बेंजोइक एसिड का अगर 12.8 आता है, अगर इसका बेंजोइक एसिड का 12.8 यूनिट्स आता है, यू हैव टू फाइंड द अल्फा ऑफ बेंजोइक एसिड. Please go ahead. How do you solve it? फिर कॉन्सेंट्रेशन में मतलब वही लैम्डा बाय लैम्डा का लिमिटिंग वैल्यू से आ जाएगा. I mean, I would obviously go सर like अल्फा this. निकालेंगे. परसेंटेज में तो ऐसे निकालेंगे, है ना? परसेंटेज में तो ऐसे निकालेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल टिपिकल क्वेश्चन है, वेयर आई वांट टू राइट 12.8 अपॉन 288.42 प्लस 42 into 100. ये मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 4% आता है, 3.9% आता है. सर 3.9%. How many of you got it right? सर कृषिव. वेद. सर हर्षित. आदित्य. सर प्रवेश. I got 5 names, all boys. For a change, so many of them from Fulbagan. Vansika. Nandini. अब इसके बाद ना 10, 11, 12, 13, 14 ना मैं सिर्फ इसलिए दे दिया जिससे कंडक्टेंस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं वो करवा नहीं पाया हूँ. 10, 11, 12, 13, 14 में ना कोई चेक योर पोटेंशियल वाला बात नहीं है. 10, 11, 12, 13, 14 बस ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं. 10 में बोलता है NaCl, HCl और एसिटिक सोडियम एसिटेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है. So they give you the conductance value for NaCl as 126.45. मैं यूनिट एक बार ही लिख देता हूं. तो 10 फैक्टर 1 है तो पर मोल पर इक्विवेलेंट की बात है. 426.16 and sodium acetate is. So exactly what I tell you, as the application of Kohlrausch's law. This is where, this law will come handy, where by a semblance of these two values, I'll call it 1, I'll call it 2, I'll call it 3. If I have to find the delta M naught of acetic acid, I'll simply go like 1 और 2 को ऐड कर देते हैं और 3 को माइनस कर, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं और 1 को माइनस कर देते हैं. यही करते हैं ना बच्चे लोग? हाँ सर. So this is only for mere practice. मेरे को लगता है इसका आंसर सी आता है. हाँ सर.
हाँ सही। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 देख लेते हैं, 11 देख लेते हैं। 11 में AgCl का, अब 11 में एक छोटा सा चीज है जो कि समझना चाहिए। 11 में AgCl का सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जिसमें ना उसका भी कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है और वाटर का कप्पा का वैल्यू भी दिया हुआ है। कप्पा का वैल्यू सॉल्वेंट का यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट अगर यहाँ पर वो वैल्यू दिया है तो इट मींस दैट नीड्स टू बी एडेड एज वेल। See, they tell you kappa of AgCl is 1.86 into 10 to the power minus 6 per ohm per centimeter, and for water they give you a value like 6 into 10 to the power minus 8, which can be taken as 0.06 into 10 to the power minus 6. अब सोल्यूबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना डेल्टा एम का, एस कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोलैरिटी विल बी the solubility, because solubility right from the beginning I've taken as moles per liter only. So if it's a saturated solution which you're talking about, this will qualify as the solubility. Delta M का वैल्यू दिया है 137.2, कप्पा का वैल्यू हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे, 1.86 plus 0.06 which is 1.92 into 10 to the power minus 6. I repeat, इसको ऐड कर लेंगे और into 1000, and this will be the solubility. They want the value of solubility, so this could be a little tough in terms of calculation, but with options around, see, with options around, this should not be a tough task. If I write it like 192 into 10 to the power minus 5 upon 137.2, this will be almost 1.3 something in 10 to the power minus 5. तो मेरे को लगता है ऑप्शन के साथ में इसको करना सिंपल है। 11 का कौन कौन आंसर निकाल रहा है, बताओ मेरे को, नाम बताओ। सर प्रवेश। नंदिनी, 11 में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सर इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्या? AgCl का निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्या? सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर इट यार। AgCl का जो है ना, उसमें AgCl का और वाटर का मिला करके होगा। आई एम रियली सॉरी, 1.80 होगा। माय गुडनेस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी, दिस इज सच अ टेरिबल मिस्टेक। ये माइनस होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इट वाज सच अ ब्लंडर। मतलब जब AgCl का कप्पा का वैल्यू है, AgCl का जब कप्पा का वैल्यू है नेचुरल, उसमें AgCl का अपना आयंस के साथ में वाटर का कप्पा का वैल्यू एडेड ही होगा। तो वाटर का जो वैल्यू दिया उसको सब्ट्रैक्ट करना, जनरली ऐसा करने हम लोग को बोलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट इज सो नेग्लिजिबल दैट वी इग्नोर इट, बट इफ इट्स गिवन इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, सर्टेनली इट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, एंड वी विल वांट टू मूव ऑन, माइनस करना हो। ठीक है वेद भाई, आगे बढ़ते हैं। 12 एकदम बिल्कुल सिंपल बेसिक एप्लीकेशन, एक फॉर्मूला का मैंने 12-13 नंबर ऐसे ही दे दिया जिससे कुछ लोग का कुछ प्रैक्टिस हो जाए। मतलब हम लोग जनरली जो फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई m, और n इन दिस केस आई थिंक इट्स n, नॉर्मैलिटी है। यू नीड टू नो दैट कप्पा इज बेसिकली c इनटू l बाई e। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस का वैल्यू तुमको दिया है, रेजिस्टेंस 250 है तो 1.250 हो जाएगा, ये 1.15 हो जाएगा। और ये भी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, दिस इज लाइक 1150 अपॉन 250, और यू कैन राइट 250 1.15 into 4, ये 4.60 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं आ रहा क्या बच्चे लोग, देखो तुम। हाँ सर, हाँ सर। 4.68। 13 में जैसे हम लोग करते हैं, 13 में if I have to calculate the conductance value of CaCl2, obviously I'll take like Ca का प्लस 2 times Cl माइनस का। तो Ca प्लस का अगर, तो Ca+2 का अगर देता है तुमको
77.33 2 बार लेंगे हम लोग Cl माइनस का होगा। कैल्शियम का लेता है 118.88 और Cl माइनस का 2 टाइम्स लेंगे। और इसको ऐड वैड करने से मेरा इवेंचुअली आंसर 273.54 आता है। हाँ तो सही सर। आ रहा है क्या? हाँ हाँ। सर। हाँ सर। So I repeat, this is only, for you to know these things, but it is as simple as it's going to look like. We'll talk about 14. 14 is again a routine problem. सर 14 भी 14 वैसे ही टाइप का है। 14 में all you have to know is that the molar conductivity of sodium nitrate would be sodium chloride plus potassium nitrate minus potassium chloride. तो ये सबका वैल्यू दिया हुआ है। NaCl का दिया है 128, KO3 का दिया है 111 और KCl का दिया है 150। तो इसका वैल्यू 87 आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बी सब कहा गया होगा? फिफ्टीन। Hydrogen electrode is immersed in a solution with pH is equal to 0. By how much will the potential change if the equivalent amount of NaOH is added? ये 15 थोड़ा सा conceptual है। Initially, when pH is equal to 0, H plus is equal to 1 molar. ठीक है, तो इनिशियली जो है वो E0 सेल है ना, ऑफ हाइड्रोजन बिकमिंग H प्लस, तो कैसे भी 0 ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, पर दो चीज है, एक तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। सॉरी, अगर कुछ नहीं लिया तो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। अच्छा, दिया भी है यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पर दिया है लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हो तो भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते। 15 नंबर सब लोग पढ़ो। 15 नंबर में बोलता है पीएच 0 है और बाद में उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए, तो चेंज क्या आएगा? अब इसमें NaOH डाल करके अगर इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो न्यूट्रलाइज करने के बाद में इसका पीएच हो जाएगा 7 और H प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। यस और नो? नाउ कीप इट सिंपल। खाली मेरे को ये बताओ कि इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलो। डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्यों डिक्रीज होगा? अरे बोलो जल्दी यार, ठीक ही तो बोल रही है। क्योंकि ये रिएक्टेंट है चेंज का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल में ये रिएक्टेंट है चेंज का, और ये अगर कम होता है तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अब हम लोग इसको ऑब्वियसली आई कैन राइट इट इन फॉर्मूले। आई कैन राइट फाइनल ई सर इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 बाई 1 log ऑफ, अब ये रिएक्टेंट है तो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस 7 लिखूंगा and it will naturally look like a minus 0.059 into 7. So if it's almost equal to minus 0.41 volt, I'll know that this is a negative value, so it is decreasing. And option C would look right. हाँ सर। Option C, how many of you got it right? वंशिका। वेद। And प्रवेश। वेद। एक नाम बीच में छूट गया, वेद, वंशिका, प्रवेश, नंदिनी। नंदिनी पहले तो नहीं बोल रही थी कि वो कम होगा, उसके बाद एक्सप्लेन नहीं की उसको। बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है यार, इतना कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। 16 और 17 नंबर, दो क्वेश्चन बचा है। 16 and 17, 16 and 17। कहीं पर कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी। यू डोंट स्टॉप मी, आई बिलीव दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। दो क्वेश्चन ही बचा है। 16 में बोलता है at what concentration of bromide and root carbonate
following is at equilibrium, and the following is Ag plus and Ag plus Ag, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, ये जो Ag प्लस है इसके साथ में इसमें Na2CO3 है, तो ये Ag प्लस किससे आ रहा है? ये Ag प्लस आ रहा है Ag2CO3 से इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, और ये Ag प्लस आ रहा है AgBr से इन प्रेजेंस ऑफ KBr। पहले क्वेश्चन समझ लो, है ये कंसेंट्रेशन सेलिंग, है ये कंसेंट्रेशन सेलिंग, इसमें कोई ऐसा हाथी घोड़ा नहीं है, पर कैथोडिक Ag प्लस AgBr आ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, और एनोडिक Ag प्लस आ रहा है फ्रॉम सिल्वर कार्बोनेट। देखो ये दोनों प्रेसिपिटेट है, ये समझो दोनों प्रेसिपिटेट है, तो इसका KSP वैल्यूज मैटर करेगा। कार्बोनेट और ब्रोमाइड जितना रहेगा, कार्बोनेट और ब्रोमाइड जितना रहेगा वो पूरा का पूरा मीडियम में रहेगा। इसका KSP दिया है, इसका KSP दिया है 8 × 10⁻12 और KSP दिया है AgBr का। अच्छा, प्लीज टेल मी हाउ डू यू अप्रोच, they want the ratio, they want the ratio, they फिर want the से ratio। Ag Yes please। फिर से Ag प्लस का KSP से निकाल लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, लाइक Ag पहला वाला में तो Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CO3 का कॉन्सेंट्रेशन Then you just tell me से what is the Ag requirement प्लस for कॉन्सेंट्रेशन equilibrium, निकलेगा। you just tell me what is the requirement of equilibrium। ई सेल 0। सर कि दर्शित है क्या? हाँ सर। दर्शित है क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ। इसका मतलब Ag प्लस लेफ्ट और राइट से जो आ रहा है दोनों बराबर है, Ag प्लस जो Ag2CO3 से आ रहा है और Ag प्लस जो AgBr से आ रहा है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में Ag प्लस बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, यस और नो? हाँ सर। और Ag प्लस कितना आएगा Ag2CO3 से, यहाँ पर Ag प्लस कितना आएगा, यहाँ पर Ag प्लस आएगा 8 × 10⁻12। I mean, I want to be a little more formal here. Let me not, kind of do it in a हरम करम, इसको थोड़ा सा आराम से करते हैं। मतलब ये एक बात पहले सबको समझ में आ गई है? हाँ, अरे हाँ बोलो। हाँ सर। उसके बाद I write Ag plus coming from silver carbonate, obviously with the amount of carbonate presence because of silver sodium carbonate as 8 × 10⁻12. So I'll write this Ag plus here, I'll write this Ag plus here as 8 × 10⁻12 upon the concentration of the carbonate and root of it. Similarly, I'll write Ag plus, which is coming from AgBr, along with Br minus, which is coming freely from KBr, as 4 × 10⁻13. And allow me to write, in the right hand side of that equation, 4 × 10⁻13 upon यार what I want is Br minus upon root of the concentration of carbonate, which now I can easily write as 4 × 10⁻13 upon root of 8 × 10⁻12. So this to me would be like 4 × 10⁻13 upon 2 √2 × 10⁻6. This could very well be √2 × 10⁻6. तो ये भी एक अच्छा ही प्रॉब्लम है। कितना लोग अभी बॉम्बे आया बताओ तो? वंशिका आया, वंशिका का आया, Ved and Vanshika, I got 2 names. Who else got it right? But you're all understanding me? You're all understanding me? I thought more of you would get it right. Aditya,
दर्शित भाई तुम तो सॉल्व करना चाहिए, बाकी हाँ लोग सर। आया आ गया, हो हाँ गया सर। दर्शित, हाँ सर। आ गया था, ठीक है। मतलब बस यही जानना है कि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन यही है कि दोनों तरफ से एजी प्लस बराबर होना चाहिए, बाकी सब चीज तो मेरे को आता ही है। लास्ट में बोलता है किसका ई सेल ई नॉट सेल के बराबर है। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम? आई वुड वांट टू मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम। हाँ, यस सर। क्या अभी किसी का बाकी कॉपी करना? You can take a snapshot if you want, and we'll want to move on. बोलता है किसमें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल है। किसमें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल है? ऑप्शन है सब मोलैरिटी में। सर इसका ये है। सर ये आ रहा है। पता नहीं मेरे को, लेकिन ये नहीं लग रहा। सर फिर देखो तो ये मतलब बी और डी सेम नहीं हो गया ऑप्शन? हाँ, बी और डी सेम हो गया, बी और डी सेम हो गया, और मेरे को लगता है बी और डी राइट है, क्योंकि तुम सोचो ई 0.059/2, ये सब में पहले ई नॉट सेल आ गया, ठीक है, ई नॉट सेल कॉमन है। उसके बाद क्या लिखते हैं? -0.059/2 लॉग ऑफ सी यू प्लस टू जो होगा वो 0.01 होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है क्यूप्रिक, और जो 0.1 होगा इसका स्क्वायर होगा। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दूसरे वाले में लिखोगे -0.059/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट होगा एच प्लस, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 विच इज 0.1, और इसका स्क्वायर होगा अपॉन 0.01। तीसरे वाले में लिखोगे -0.059/2 लॉग ऑफ 0.1 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, और चौथा वाले में लिखोगे -0.059/2 लॉग ऑफ 0.1 का स्क्वायर है 0.01। ये नो? हाँ सर। मेरे को ए सी डी तीनों लग रहा है। ए बी हाँ डी, ए बी सर। डी, हाँ ए ए बी डी बी डी तीनों तीनों हाँ तीनों सर। आएगा। हाँ ए बी सर। डी तीनों ही है। हाँ सर। ए बी डी तीनों ही लग रहा है, मतलब इवेंचुअली जो फैक्टर है वो इवन आउट हो जाना चाहिए, लॉग वाला फैक्टर इवन आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका बहुत एप्लीकेशन है, इसका बहुत क्वेश्चन आता है जेई मेंस में। मतलब जेई मेंस का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन में करने जाओ 100 क्वेश्चन और मिल जाए। देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू एंड इट, इलेक्ट्रोलिसिस और कोऑर्डिनेशन दोनों में और पढ़ाऊंगा, बट बिफोर द टेस्ट आई वांटेड सम बेसिक प्रैक्टिस। तो मेरा नोट्स देख करके जाओ, बेसिक कोई किताब से सॉल्व एग्जांपल्स देख करके जाओ, कोई डाउट हो क्वेश्चन हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट आई रेकन दिस मच द टाइम बीइंग, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलते हैं बच्चे लोग, एंजॉय द वेदर, स्टे इंडोर्स, पढ़ाई करो, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस थैंक यू यू ऑल, सर, गुड बाय नाइट। सर। थैंक यू सर। बाय। Bye. Thank you.